مہینہ ختم ہو جائے گا, 31 تاریخ کو 31 کی نائٹ منائی جائے گی. کرسمس کی رات بھی لوگوں نے منایا, خوب منایا, جو جتنا منا سکتے تھے ٹھیک ہے. لیکن اب جو رات 31 کی آ رہی ہے, اس میں آپ گناہوں کے کام کو چھوڑ دیجئے اور گناہوں کے کسی راستے پر نہ چلیے. اپنی بھی فکر کیجئے اور اپنے گھر کے بچوں اور بچیوں کی بھی فکر کیجئے. نوجوان بچے اور بچیوں کو اس دن سے لے کر کے اس رات تک میں کسی قسم کی کوئی پارٹی کہیں پہ اگر ہے, اگر آپ کے بچے اور بچیاں یہ کہتے ہیں کہ میں دوست کے ساتھ اس کے برتھ ڈے پارٹی میں جا رہا ہوں یا اس کی کسی اور پارٹی میں جا رہا ہوں, قطعی آپ اس کو اکیلا مت جانے دیجئے, بالکل نہیں. اگر آپ کے بچے اور بچیاں 10-12 سال سے اوپر کی ہیں تو بالکل نہ جانے دیجیے اور نہ جائیے. اور جو 10-12 سال کے نیچے کی ہیں وہ بھی اگر پیسے مانگتے ہیں کہ نوڈلز لا کے چھت پہ بنائیں گے یا کھیت میں بنائیں گے اور وہ میگی بنائیں گے اور یہ کریں گے وہ کریں گے, آپ بالکل مت دیجیے. یہ کوئی خوشی کا موقع نہیں ہے, کوئی خوشی کی چیز نہیں ہے, کوئی شرعی چیز نہیں ہے, بلکہ یہ گناہ ہے. اور یہ وہ چیزیں ہیں جو آگے چل کر کے ایک بڑے گناہ کا روپ اور بڑے گناہ کا شکل اختیار کر لیتی ہے اور ہم اب سمجھ نہیں پاتے ہیں. عمریں بڑھ رہی ہیں, زندگی ختم ہو رہی ہے, کچھ کیا نہیں, اس پہ کوئی پچھتاوا نہیں ہے, کوئی افسوس نہیں ہے. آئندہ سال اور آئندہ وقتوں کو اچھا کیسے بنائے, کامیاب کیسے بنائے, اس کی کوئی فکر نہیں ہے. بیٹھ کر کے آپ سب ذرا سوچیں کہ 2024 میں کتنی نمازیں آپ نے پڑھی ہے, کتنے روزے رکھے ہیں, کتنی تلاوتیں کی ہیں, کتنا ذکر کیا ہے, آنکھوں کی کتنی حفاظت کی ہے, آپ نے کون سے اپنے لباس کو بدلا ہے. لباس آپ نے پردے والا بنایا یا جو پردہ پہلے سے تھا آپ نے اس کو بھی زیادہ بے پردہ کر دیا ہے, کیا کیا ہے آپ نے, اس کا محاسبہ کیجئے. یہ سمجھیے آپ نے اپنے بچے کو کلمہ بھی یاد کرایا پورے سال میں کہ نہیں, درود بھی یاد کرایا کہ نہیں, پورے سال میں آپ نے اپنے بچے سے ایک مرتبہ پوچھا نماز کے لیے یا بیٹھا کے پوچھا کہ نماز کی کیا چیزیں تمہیں یاد ہے. تم اگر صرف جمعہ پڑھنے جاتے ہو تو یہ بتاؤ کہ جمعہ بھی تم جانتے ہو کہ نہیں, کتنی رکعت نمازیں ہیں, کیا پڑھتے. اب سوچئے یہ اگر آپ نہیں کی اور نہیں کرتی ہیں, دل پہ ہاتھ رکھ کے جواب دیجئے آپ کیسی ماں ہیں, تو کیسے گرجین ہے. تو اس کی کوئی فکر نہیں ہے اور پیسے دے رہے ہیں, گناہ کے راستے میں بھیج رہے ہیں, پارٹی پہ پارٹی ہو رہی ہے, پکنک پہ پکنک منی جا رہی ہے, 31 نائٹ منا رہے لوگ, میوزیکل پارٹی ہو رہی ہے اور بے تحاشا کیا میں عرض کروں. یہ وہ رات ہے جس رات میں بہت سے گناہ آپ کے بچے اور بچیاں پہلی مرتبہ کرتے ہیں اور پھر وہاں سے گناہ کا دروازہ کھل جاتا ہے. اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ 10-12 سال کے بچے بچیاں جو بھی ہے, اس سے نیچے کے بھی ابھی کے ٹائم میں 7-8 سال جس کو 2-4 دوست ہو گئے ہیں, جس کے اندر عقل شعور آ گیا, اس کو بھی, کیونکہ یہ وہ پہلی رات ہے جس رات میں آپ کے بچے اور بچیاں ایک دوسرے سے نمبر ایکسچینج کرتے ہیں. یہ وہ پہلی رات ہے جس رات میں آپ کے بچے اور بچیاں کھانے پینے کی چیزوں میں لگ جاتے ہیں. یہ وہ رات ہے جس میں آپ کے بچے اور بچیاں بہت سے نئے دوستوں سے مل جاتے ہیں. یہ وہ رات ہے جس رات میں آپ کے بچے اور بچیاں گناہ کی آخری حد کو پہلی مرتبہ پہنچتے ہیں. میں اس سے زیادہ پردے میں اور اس سے زیادہ صاف نہیں کہہ سکتا آپ کو. یہ سب دسمبر سے شروع تھا. ابھی آج ہی مجھے ایک لڑکا کہہ رہا تھا محمد صاحب پڑھائی لکھائی میں ایک دم من نہیں لگ رہا, فروری میں مارچ میں ایگزام ہوگا. میں نے کہا بیٹا میں سمجھ رہا ہوں تمہارے درد کو, دسمبر جنوری فروری میں یوں ہی نوجوانوں کے دل نہیں لگتے ہیں. اور نوجوان کیا جن کی عمریں ہو گئی ہے 22 سال 25 سال 30 سال, گھر میں ماں باپ بیٹھا کے اس کو سڑا رہے ہیں, اس بیچارے کو کیا دل لگے. اس کو بھی تو دسمبر ستاتا ہے, جنوری کاٹتی ہے کہ ہر کوئی خوشی کی زندگی جی رہا ہے اور ہم صرف ماں باپ کو, یہ پتہ نہیں کب ماں باپ کو ہم 3 منزلہ بنا کے دکھلائیں گے, اس کے بعد ہمارا کچھ ہوگا. تو اس بیچارے کے لیے بھی دسمبر جنوری جو ہے سے مصیبت بن جاتی ہے. تو یہ ہوتا ہے, یہ ایگزام کا موقع ہوتا ہے, پڑھنے کا موقع ہوتا ہے, اور پھر اب یہ جب 2-4 دن نکل جائے گا نا, پھر میرے پاس کیسز آئیں گے, بہت اچھا دیو کا سب کچھ ٹھیک تھا, اب دیکھیے نا باتیں نہیں مانتی ہے. اب کیسے بات مانے گی, دیو کو بات بتانے والا کوئی اور مل گیا ہے, دیو کسی اور کے اشارے پہ چل رہی ہے اب, اس لیے اب آپ کی بات نہیں مانے گی. اب اس کو ایسی بھوت پکڑے گا, اب اس کو ایسی جنات سوار ہوگا جب وہ گھر میں گھسے گی آپ کے سامنے بیٹھے گی. تو میں جانتا ہوں میری بات ایسی رہتی ہے, تیز بھی رہتی ہے, سخت بھی رہتی ہے, لیکن حقیقت ہی یہی ہے. اس لیے اپنے بچے اور بچیوں کی فکر کریں, اپنے ساتھ رکھیں, پیار دیں, محبت دیں, بتائیں اور سکھائیں اور احساس دلائیں کہ یہ سال کے پورا ہونے کی وجہ سے, یہ مہینے کے پورا ہونے کی وجہ سے آپ کی عمر اتنی ہو گئی, آپ اتنے بڑے ہو گئے, آپ کے ساتھ یہ ہو گیا, لیکن ہم اب تک دین نہیں جان پائے, اسلام نہیں جان پائے, کلمہ نہیں جان پائے. جب یہ نہیں جان پائے, اب جب وہ آگے قدم اٹھے گا اسے اسلام سے محبت ہی نہیں, ایمان سے محبت ہی نہیں, ماں باپ کی قدر ہی نہیں معلوم ہے, وہ اپنے کو جانتے ہی نہیں, بڑے کو جانتے ہی نہیں ہے, اس کے اندر کوئی شرم و حیا ہے ہی نہیں ہے.
फिर हर काम करना उसका आसान है। फिर क्यों हम बैठे रो रहे हैं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया? फिर रोने की जरूरत तो नहीं है। फिर तो चाहिए था कि मां बाप अपने सर पे ईंटा मार के फोड़ लें, क्योंकि ये तो आपके दिमाग की वजह से हुआ ना। आपने पहले चॉकलेट दिया, फिर मैगी दिया, फिर नूडल्स दिया, फिर छोटे छोटे 2 रुपए वाला कार्ड जैसे एक दूसरे को देने दिए लेने दिए। फिर आज जमाना चल रहा है कि 2000 रुपए वाला कार्ड दे रहा है, वो जाकर के उड़ा रहा है। इसलिए अपने बच्चों पर भी नजर रखें और बच्चियों पर भी नजर रखें। कल मैंने ये बात जुमे में भी कही थी कि इस उम्मीद में कोई बहन न रहे कि अगर मैं किसी के भाई के साथ घूम रही हूं तो आपका भाई किसी के साथ नहीं घूमेगा, या कोई भाई बेगैरत ये ना समझे कि मैं किसी की बहन के साथ अगर घूम रहा हूं और डेट कर रहा हूं तो मेरी बहन महफूज है। ऐसा नहीं है। ये आप जैसा करेंगे वैसा आपके घर के साथ उतरेगा, आप किसी और के साथ, कोई आपके साथ। और ऐसे तो बेशुमार वाकयात है कि एक ही साथ एक ही जगह में दोनों पकड़े गए, लेकिन अब मजा ले कि बहन मुंह नहीं खोल सकती कि ये मेरा भाई है, और भाई मुंह नहीं खोल सकता कि ये मेरी बहन है, क्योंकि दोनों तो छुप करके गए हैं और दोनों इसी हरकत के लिए गए हैं वहां पे। तो इसलिए अल्लाह के वास्ते ये 25 तारीख ये गैरों का त्यौहार था, खालिसतन ईमान के खिलाफ त्यौहार था। लेकिन हमारे माशरे और हमारे कौम और हमारे बच्चों ने और माओं ने बच्चों को सवार सजा करके भेजा स्कूल में, कॉलेज में। ये प्रोग्राम भी मनाया गया। इसमें भी बहुत सारे गुनाह के दरवाजे खुलते हैं, गुनाह का काम होता है। आप लोग तो यहां है ना, छोटी जगहों पे है तो नहीं मालूम, बड़ी जगहों में निकलिए तो आपको पता चले कैसे कैसे गुनाह होते हैं। लेकिन फिर उसके बाद अब ये आखिरी रात ये गुनाह की ही तौर पे मनाई जाती है। इस 31 की रात को लोग गुनाह के ही नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। इसलिए खुदारा अपने आप की भी हिफाजत कर लीजिए, अपने नौजवान नस्लों की भी हिफाजत कर लीजिए। और 1 जनवरी को जो पिकनिक मनाने के लिए पूरा शहर जाता है, इसकी भी कोई गुंजाइश शरीयत में नहीं है। ये कोई ना अच्छा दिन है, ना कोई खुशी मनाने का मौका है, और ना ये है। तो इसलिए ये एक का भी ख्याल रखें। आज अगर आपने बच्चों के साथ ढिलाई दिया, ये बच्चे कल को आगे बढ़ते जाएंगे और होता जाएगा। आज बहुत सारी मॉडर्न जो माएं हैं, जवान बहिनें हैं, वो भी ये सब हरकत करे। क्यों? शुरुआत से उसको खुले सांड की तरह जिंदगी गुजारने को मिली है, शुतरे में महार। वो घूमते आई है, याशी करते आई है। इसलिए आज क्या होता है ना, आज ही के दिन अब देखिए, पुराने जितने वोटर आईडी है, पुराने जितने कार्ड हैं, पहले डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखा जाता था, सिर्फ साल लिखा जाता था। तो सबका एक है। तो अब जिसको ना भी सही है उसको भी मौका मिल जाता। पढ़ी लिखी चलाक जो है वो समझाते देखिए ना, 1 तारीख को उसका बर्थडे है ना, हमको दावत दी इसे। वो पता चला उसका क्या के लिए बर्थडे रहेगा, इसका अपना जैसे कुछ और बर्थडे हो रहा है। तो इस बात की फिक्र कीजिए, समझिए। मैंने आयत पढ़ी थी, तर्जुमा कर दूं, बस अज़ान होने वाली है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने कलाम मुक़द्दस में बयान फरमाया कि देखो, जो शख्स हद से आगे बढ़ेगा, जो शख्स इस्लामी तालीमात को छोड़ करके, कुरान व अहकाम की बात को छोड़ करके, शर्म हया को छोड़ करके, ईमान को छोड़ के, इस्लाम को छोड़ करके जो इस हद से आगे बढ़ने की कोशिश करे, फअम्मा मन तगा, मनमानी जिंदगी गुजारे, हद को क्रॉस कर दे, गुनाहों में लग जाए, गुनाहों की चीज को फैशन समझने लगे, दोस्ती समझने लगे, मौज मस्ती समझने लगे, अपनी इंजॉयमेंट का और अपनी तसल्ली का सामान समझ ले, वो आसार हयात दुनिया, बस ये कहे कि भाई यही तो जिंदगी है, यही तो उम्र है, अभी जवान जहान है, अभी न करे तो कब करेगा, अभी अगर न जाने देंगे तो कब जाने देंगे, अभी तो उम्र है ना, अभी जवान है। अगर ये कह करके जिंदगी गुजारते हैं, वह सरल हयात दुनिया की जिंदगी को अगर अहमियत देते हैं, हकीकत समझते हैं, अल्लाह ने साफ साफ बयान फरमाया, फ़इन्नल जहीम हियल मावा, फिर ऐसे का ठिकाना ये जहन्नम है, ऐसे का ठिकाना ये जहन्नम है। आपको याद है अभी 1 साल 1.5 साल 2 साल पहले यही 31 की रात को या 1 तारीख को आपके इलाके ही के बच्चे सारे के सारे होटल से पार्टी करके लौट रहे थे, सब कुछ करके अच्छी तरह से पूरे टुन, और रास्ते में एक्सीडेंट हुआ, और खुद ही एक्सीडेंट किया, और ऐसे एक्सीडेंट किया कि सारे के सारे चल बचे। क्या कहिएगा आप इसको? या लोग कहते हैं कि इमाम साहब शहीद हो गया होगा ना, एक्सीडेंट हो गया। वहां साहब गुनाह करके आ रहा है, पार्टी मना करके आ रहा है, सब कुछ करके आ रहा है। अल्लाह ने फरमाया जब बंदा गुनाह कर लेता है, जब तक तौबा ना करे, ईमान उसके दिल से निकला हुआ रहता है, ईमान मुअल्लक रहता है। जब बंदा रो धो करके तौबा कर लेता है, माफी मांग लेता है, तब ईमान दिल में अल्लाह डालते हैं। क्या मालूम ईमान उसके दिल में था भी कि नहीं, और हम फतवा देते हाँ शहीद हो गया होगा। मैंने कहा भाई तुम्हारा मसला, तुम सोचो क्या हुआ है, वो ये फैसला अल्लाह करेगा, ये मेरे हाथ में नहीं है। अल्लाह ने फरमाया कि दुनिया की जिंदगी को अगर असल समझते हैं और मनमानी जिंदगी गुजारते हैं तो ठिकाना जहन्नम है। लेकिन आगे अल्लाह ने बयान फरमाया, फअम्मा मन
खाफ मकाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा, कि जो इस बात से डरे कि मुझे अपने रब के सामने खड़ा होना है, अपने किए का जवाब देना है कि हमने कब क्या किया। हमें अल्लाह ने जिस दिन खुशी मनाने के लिए कहा था हम उस दिन खुशी मनाएं, या जिस दिन गैरों की खुशी का दिन था हम उस दिन खुशी मनाएं। हम खुशी जायज तरीके से मनाए हैं या नाजायज तरीके से मनाए हैं, हमने कैसी खुशी मनाई है। जो इस बात से डर जाए अपने रब के सामने खड़ा होने से और जवाब देने से कि हम क्या मुंह दिखाएंगे कि अल्लाह ने कहा था कि ये पीना हराम है और हम पीने के लिए गए थे। अल्लाह ने कहा था मौसीकी हराम है, गाना हराम है और हम म्यूजिकल नाइट मनाने गए थे। अल्लाह ने कहा था कि बेपर्दगी हराम है और हमारी बच्चियां और हमारे घर की मां बहनें ये एक से एक जैसे भड़कीले और बेपर्दा कपड़ा पहन के बाहर निकली थी। अल्लाह ने कहा था, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ईमान का एक हिस्सा है हया, जिसके अंदर से हया खत्म समझ लो ईमान खत्म। हम वो बेहयाई के तमाम रास्ते को हम निकल गए थे, क्या मुंह दिखाएंगे। जो इन तमाम बातों को समझ करके अगर डर जाए, फमन खाफ मकाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा, अपने नफ्स को रोक ले, अपने मन को रोक ले। दिल तो मेरा भी चाहता है कि हम भी जाएं होटल में घूम के आए, दिल तो मेरा भी चाहता है कि हम भी जाए पिकनिक बना के आए, दिल तो मेरा भी चाहता है कि हम भी जाके उसी मैदान में जाम लगाएं जिसमें सब लोग जाम लगाए हुए हैं। दिल तो चाहता है लेकिन नहीं कर सकते क्योंकि शरीयत के खिलाफ है, मिजाज के खिलाफ है, इस्लाम के खिलाफ है, ईमान के खिलाफ है। जो ये समझ करके अपने नफ्स को रोक लिया, वनहन नफ्सा अनिल हवा, अपने ख्वाहिश को रोक ले, अपने मन को रोक ले, रुक जाए इससे। अल्लाह ने क्या प्यारा उसको एजाज दिया है, क्या वह अवार्ड दिया है। अल्लाह ने फरमाया फइन्नल जन्नत हियल मावा, फिर ऐसे शख्स का ठिकाना हम जन्नत बनाएंगे। अरे दुनिया में क्या जैसे चिकन फ्राई खा रहे हो और ये रोस्टेड खा रहे हो और वो खा रहे हो, एक आइसक्रीम के लिए दिन भर बदनजरी कर रहे हो, दूसरे को भी दिखला रहे हो और दूसरे को देख भी रहे हो एक आइसक्रीम के चक्कर में। अल्लाह फरमा रहा है उसे जन्नत में मैं जन्नत देंगे उसे, और वो जन्नत जहां की नेमत के बारे में हम सोच भी नहीं सकते, जहां के घर के बारे में हम सोच भी नहीं सकते, जहां के लिबास के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। ऐसा कीमती और ऐसा अजीम शान अल्लाह लिबास अता फरमाएंगे और खाना और पीना और तमाम नेमतें अता फरमाएंगे। ये जन्नत के और जहन्नम के तज़किरे में हम आप पढ़ते सुनते और समझते रहते हैं। इसलिए मेरी माँ बहने, मेरी आवाज बंद थी लेकिन मैं बड़े दर्द के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ और बड़े इखलास के साथ मैं ये बातें अर्ज कर रहा हूं। हालांकि आपको मालूम है अभी जो सीरीज चल रहा है ना, ये अब जादू का सीरीज चल रहा है। जिन्नातों पे मैंने बात कर ली है मुकम्मल, अब जादू पे बात चल रही है। जादू पे एक किस्त की बात हुई है, अभी दूसरी तीसरी किस्त और होनी है, फिर 2-3 किस्त जो होगी ये मुकम्मल इलाज पर होगी, मुकम्मल दुआ पर, जिसमें तमाम चीजों की दुआएं हम बताएंगे। तकरीबन 20-25 मुजर्रब दुआ और तरकीब बताऊंगा मैं, जिससे आप खुद अपने बीमारी को भी चेक कर सकती हैं, अपने भूत को भी, अपने शैतान को भी, अपने काला पीला नीला बुलू आंख का, कान का, जबान का, जैसा भी जादू है, किया कराया खाया पिलाया सब चेक कर सकते हैं खुद से और खुद ही उसका इलाज भी कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह आइंदा हफ्तों में फिर जब तशरीफ लाएंगी तो आपको वो कीमती बातें भी सुनने को मिलेंगी जो मेरी सीरीज चल रही है। चूंकि ये साल खत्म हो रहा था और ये बड़े गुनाह के बड़े अजीम मनहूस दिन चल रहे थे, तो मैंने सोचा कि ये कुछ बातें अर्ज कर दूं। दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो भी मुख्तसर सी बातें हुई है, मालिक करीम हम तमाम को इस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह हमें भी, हमारी नस्लों को भी, हमारी पूरी कौम और पूरे मुआशरे को गुनाह के रास्ते और गुनाह की चीजों से अल्लाह बचा ले और हम तमाम के हाल पर रहम फरमा दे। और जो गुनाह हमसे हो गए हैं अल्लाह उन तमाम को भी माफ फरमा दे, आइंदा के लिए अपने हिफ्ज़ ज़मान में ले ले। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।